Good morning, everyone. Am I audible? You can use the chat window or the mic to communicate. So let's just take a quick feedback in terms of am I audible to you? Right, fantastic. So let's try to understand why are we here, right? And obviously, you are here because you're interested in doing some kind of interaction with us. So क्या exactly क्या करने वाले हैं हम लोग? So we are going to talk about Mean Man, correct? And we are going to talk about how this is going to be going ahead. You want to understand ये होगा क्या, कैसे होगा. But before that, what I would like to understand is uh, this is what we are going to be discussing, right? That's the agenda that we are going to be talking about. That over the next 60 minutes, we will be doing this, right? So that we clear about this, let's start off with the first point that we want to talk about is why. राइट एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट यू टू शेयर योर थॉट्स आपके जो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करने के लिए हम आपको इंकरेज कर रहे हैं कि फर्स्ट बिट क्यों कहीं नाम सुना होगा या दोस्तों ने बताया होगा या what exactly is the reason that you think we should connect and please be communicative be interactive क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है ना कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है कि हम बात क्या कर रहे हैं सोच क्या रहे हैं राइट तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस यानी मीन मन कर रहे हैं हम लोग लेकिन हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो आपने हमें क्यों चुना इज व्हाट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एनीवन वी विल टॉक अबाउट कि हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं वी विल एक्सप्लेन दैट बट बिफोर दैट इसके पहले आपने कहीं पे फर्स्ट बीट का नाम सुना है या पहली बार देखा या इंस्टाग्राम पे कहीं तो देखा या एडवर्टाइजमेंट देखा वेयर डिड यू कम अक्रॉस फर्स्ट बीट एनीवन आई एम श्योर कि इतने शर्मीले तुम रियल लाइफ में नहीं हो राइट है ना social media good Swapnil thank you your friend suggested Gaurav if you don't mind we would also like to understand who exactly this is no not here you can connect with us offline and tell us which friend suggested this to you right we would like to understand how we are connecting with people so yeah fantastic anyone else would like to talk to us your husband suggested okay so Sonali just out of curiosity you don't have to answer that did your husband परस्यू कोर्स हुई था हमारे साथ वो जुड़े हुए थे या ऐसे ही कहीं से सोशल मीडिया पे देखा या एडवर्टाइजमेंट देखा सॉरी ऐसे इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू आंसर टू दैट वी आर फाइन विद इट बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे पहुंच रहे हैं ओके ही जॉइंड पाइथन कोर्स 2 years ago राइट so you're kind of an alumni right extended family के part हो आप fair enough so uh, we are going to talk about mean month तो हमारे साथ दो लोग और जुड़े हुए हैं and I'll introduce you to them. We have Amit with us. He is going to be the technical expert who will guide you through mean month में क्या होगा कैसे होगा flow क्या होगा तो टेक्निकल क्वेरीज आपकी जो कुछ भी होगी वो अमित हैंडल करेंगे अमित आर यू देयर Yes, hello everyone. राइट एंड then we would encourage you to take a look at the fee structures that we are going to be having और कैसे करना है flow क्या होगा और किस तरह से हम वो पूरा प्रोसेस करते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव आवर फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस राणु राणु आर यू देयर Yes, sir. राइट फैंटास्टिक सो एज वी गो अहेड हम इन चीजों पे बात करेंगे तो जो स्पेसिफिक आपकी क्वेरी होगी उस क्वेरी को लेके वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट आपसे बात करेगा तो आप सोच रहे होगे तुम कौन हो है ना कहीं ना कहीं तो ये दिमाग में ख्याल आया होगा कि तुम कौन हो टेक्निकल एक्सपर्ट अगर अमित है फाइनेंशियल एक्सपर्ट अगर राणु है तो तुम कौन हो राइट तो यू नो हु आई एम
Do you know who I am? No. Right, right. So let me introduce myself. I'm Chetan. I am working as a Java trainer in FirstBid. Fine. But I also work as the Chief Operations Officer and I look after the placement. So I will be guiding you through the entire process. आपको पूरी process के through हम guide करेंगे with the help of Amit and Rana. Right? तो अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिंदास पूछ सकते हो विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी फियर ऑफ रिपरकेशंस। कि ऐसे भी हम लोग पहले कुछ दिन तो ऐसे ही बात करने वाले हैं, राइट? So let's proceed as to what exactly we are talking about Postpaid solutions, right? So what is it that we can offer? Well, first and foremost, quality training. Okay. Now, why do we say quality training? Quality training तो हर कोई बोलता है ना, quality training हर कोई बोलता है, तो हम क्यों बोल रहे हैं? How can we prove this to you? Well, we can prove it to you upfront. तो जो ट्रेनर आपके साथ जुड़ेंगे, जितने भी हमारे ट्रेनर्स मीन मन के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए जुड़ेंगे, सबके पास एटलीस्ट 10+ ईयर्स का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। और टोटल एक्सपीरियंस अगर गिनने जाएंगे तो शायद क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस 100 साल के ऊपर चला जाएगा। बट वी आर नॉट गोइंग दैट। वो जब आप हमसे बात करोगे तो आपको बात करने से ही पता चलेगा कि जिस डेप्थ पे हम बात कर रहे हैं वो ट्रेनिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा एंड वी विल बी हैविंग क्वालिटी ट्रेनिंग, राइट? बट यस, आई डू अग्री कि फिर भी दिमाग में शक हो सकता है कि हाँ तुम तो बोलोगी, तुम्हारा काम ये बोलना, हम कैसे जाने, हम कैसे माने, राइट? सो वी एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। We absolutely agree with that. And that is why what we are suggesting that we provide you 30 hours free demo. That is, आप ऑनलाइन जो लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, if you decide to pursue with us, and I recommend definitely you should. But अगर आप हमारे साथ pursue करने शुरू करोगे तो हम आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे and for 30 hours you can, rather I will say you should follow that course. देखो एक बार कि वो कोर्स में हम क्या पढ़ाते हैं, किस लेवल पे पढ़ाते हैं, क्या क्वालिटी का पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको कितनी फी भरनी होगी? कुछ भी नहीं, इट्स फ्री, राइट? सो वी आर एनकरेजिंग यू, वी आर इनवाइटिंग यू टू टेस्ट अस, कि आप देखो एक बार, राइट? दूसरी एक चीज जो हम ये क्यों कर रहे हैं 30 इयर्स फ्री डेमो इज बिकॉज हम ये भी चाहते हैं कि आप एक बार चेक कर लो कि हम मीन मन के बारे में बात तो कर रहे हैं, बट डू यू थिंक यू आर कंफर्टेबल विद इट? आप कंफर्टेबल हो सारी चीजों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, जो कुछ हम बात करने वाले वो सारी चीजों के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो, वो एक बार चेक कर लो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि आप आओ, फी भरो, फिर आप अपना देख लो, फिर हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। वी विल encourage you to check and evaluate कि आप और हमारा ट्यूनिंग मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट इज वाई दिस 30 hours free demo is something that we recommend आपने करना चाहिए। फाइन। इन एडिशन टू दैट, yeah, this is where हमारा USP है। Okay, one of the lowest bracket of costing that you will find in the entire city, in the entire industry. Okay, so yeah, I mean pricing is definitely an issue क्योंकि not everyone can afford लाख रुपए का कोर्स। agree कि लोग चार्ज करते हैं, कुछ भी चार्ज करते हैं, जो मन में आए वो चार्ज करते हैं, right? I'm sure you have seen and heard other training institutes और वहाँ के courses के बारे में आपने देखा होगा। तो what is the general course fees that you have come across? If you have, अगर आपने कहीं देखा होगा तो क्या average cost क्या देखा है आपने? Anyone? 1 lakh minimum, right? So how much do we charge? Well, not, of course, not 1 lakh. Right? I will let Ranu explain that to you later on, but I'll definitely say it is way, way, way lower than 1 लाख से बहुत ही कम है। ओके, तो विल टॉक अबाउट दैट जब हम फाइनेंशियल मॉडल के बारे में बात करेंगे, तब हम बताएंगे कितना फी होगा, कैसे होगा, प्रो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। विल टॉक, डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। बट प्राइसिंग इज समथिंग दैट वी हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि हम लूटने नहीं बैठे हैं। ओके, ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि हम चैरिटी कर रहे हैं, कि फ्री में पढ़ाएंगे, डेफिनेटली नॉट। बट वट एवर इज द मिनिमम नेसेसरी थिंग्स, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू बी चार्जिंग यू, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि पढ़ाना हमारा पेशा है, हम पढ़ाना हमारा पैशन है, तो वी फॉलो दैट। वी आर नॉट डूइंग दिस एज अ बिजनेस।
Is it a business? Yes. But is it the priority? Well, secondary. फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंश्योरिंग कि स्टूडेंट को जितना नॉलेज हमारे पास है, जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, वो सारा मिले एंड स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम दैट. दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस, राइट? देन व्हाट वी हैव इज वी डू अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसे होता है कि आप शायद जॉब कर रहे हो या आप कहीं पे बिजी हो, एग्जाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, एंड ऑनलाइन सेशन अटेंड करना मुश्किल होता है. वी अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज वी डू नॉट मेक कोई भी प्रोसेस आपके लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा. ओके, तो अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज सेशंस जो कंडक्ट होंगे, राइट? नॉट ओनली दैट एज यू कैन सी इन द बायलाइन, ये टाइम के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा. ऑफ कोर्स गूगल जब तक अपना पॉलिसी चेंज नहीं करता है तब तक, राइट? तो जब तक गूगल चलेगा तब तक ये रिकॉर्डिंग चलेगा, राइट? और रिकॉर्डिंग का एक और बेनिफिट जो आपको शायद बाद में यू विल रियलाइज कि बहुत सारी जगह पे बाद में रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन के लिए हम नोट रेफर करते हैं, लेकिन नोट बनाने की आदत सबको तो होती नहीं है. मुझे तो बिल्कुल था, तो आई नेवर क्रिएटेड नोट्स, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली आर इन हैबिट ऑफ क्रिएटिंग नोट्स? पेपर पे लिख के कितने लोग नोट बनाते हैं? लेट मी आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, कितने लोग नहीं बनाते हैं? जैसे कि मैंने बोला, मैं नहीं बनाता था कभी भी, और फिर एग्जाम टाइम पे मुश्किल होती थी, फिर लोगों से ढूंढना पड़ता था कि तेरा नोट दे दे, तेरा नोट दे दे. सो एनीवन हु वांट्स टू एडमिट कि नहीं मैं कभी नोट नहीं बनाता था, right? तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि जब कभी भी आपको जैसे इंटरव्यू को जाना है या एग्जाम देना है, तो उसके पहले क्विकली रिकॉर्डिंग देख लो, रेफर टू द रिकॉर्डिंग्स जो आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा, एंड देन you can just revise whatever you are missed out on. Fine. And of course, okay, let me ask you one more question. How many of you are going to be job seek करने वाले हैं इसके बाद? You are looking for skill enhancement की job चाहिए, job के लिए interview देना होगा. How many of you are looking for a placement? कितने लोग हैं? Right. Gaurav has raised his hand. Good. So there are a few members, right? There will be a few members, and I'm sure that most of you would be interested in doing that. तो इंटरव्यू में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है? इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, बात क्या करनी है, कौन से सवाल पे किस तरह से जवाब देना है. तो ऑल दैट ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. उसका अलग चार्ज लगेगा क्या? नो. तो इन एडिशन टू वट एवर दैट वी आर गोइंग टू बी गिविंग टेक्निकली जो कुछ भी हम चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उसके साथ सॉफ्ट स्किल का भी शेयर करेंगे, जहां पे ग्रामर प्रिपरेशन होगा, एचआर का इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है प्रिपरेशन होगा. सी जनरली क्या होता है ना, एक सबसे बड़ा सवाल जहां पे सब लोगों को दिक्कत आती है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ओके, आई हैव बीन टॉकिंग टू मल्टीपल एचआर एग्जीक्यूटिव्स, रिक्रूटमेंट टीम्स, और उन सबका यही कहना है कि ये सवाल पे ना सबसे ज्यादा लोग उलझ जाते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ पे बोलना क्या है यही समझ में नहीं आता, राइट? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? अगर मैंने अभी अभी अगर किसी को पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बता पाओगे? बिकॉज नो वन नोज इसका सही आंसर क्या है, करेक्ट? वी विल हेल्प यू कि एचआर इंटरव्यू फेस कैसे करने हैं, एचआर इंटरव्यू में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या टोन में बोलना है, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी एडिशनली गिविंग यू. फाइन. इन एडिशन टू दैट, या दिस इज वन, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो विच मेक्स अ स्टैंड आउट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. हाँ, कुछ लोग करते हैं बट बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं. वी कंडक्ट मॉक्स, मतलब कि एक कोई आपका टेक्निकल मॉड्यूल खत्म होने के बाद हम आपके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के ऊपर. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका मोंगोडीबी का मॉड्यूल खत्म हो गया तो मोंगोडीबी पे आपका मॉक होगा, राइट? विच विल प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यूज. इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे आपको, सो दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू में जाने के बाद समझ में आता है कि यार हमने तो कभी देखा ही नहीं था, अभी तो मुश्किल हो रहा है, नर्वसनेस बढ़ रहा है. नर्वसनेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होता है. तो मॉक्स की वजह से हम आपका प्रिपरेशन भी करवाएंगे कंटिन्यूअसली. ओके, एंड जो हम बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में. तो इवैल्यूएशन, वी डोंट हैव इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स,
राइट, कि मेरे 40%, मेरे 50%, मेरे 90%, ये प्रेशर बढ़ाने का काम है, राइट। 10th और 12th में हमने एक्सपीरियंस किया है कि तेरे कितने परसेंट, राइट। अगर किसी का आधा भी परसेंट ज्यादा होना है तो टेंशन होता है कि मेरा 75 है लेकिन इसका 76 है, तो ये ज्यादा होशियार है ना। लगता है, नहीं लगता है? या अभी तो परसेंट नहीं होता है, सीजीपीए होता है, तो मेरा क्या 8.9 है, इसका 8.8 है, तो मैं होशियार। करेक्ट। So we do not believe in grade system. We do not believe in any kind of rankings. We have a binary system. See, ultimately कोर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको प्रूव करना है कि आपको टेक्नोलॉजी आता है, राइट। तो उसके लिए फिर ग्रेडिंग क्या चाहिए? करेक्ट है कि मुझे ए ग्रेड है या सी ग्रेड है, उससे फर्क पड़ता है? नहीं, टेक्नोलॉजी अगर आता है तो जॉब मिलेगा, टेक्नोलॉजी अगर आता है तो इवोल्यूशन क्लियर होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो दैट इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो, कि हम ग्रेड नहीं देंगे, हम परसेंटेज नहीं देंगे, हम सिर्फ ये बोलेंगे बाइनरी सिस्टम है, हाँ या ना, कि तुम इंटरव्यू फेस करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, इतना ही। फिर तुम ज्यादा अच्छे हो, कम अच्छे हो, ये हम बात ही नहीं करेंगे। इधर यू आर रेडी और यू आर नॉट रेडी, दैट्स इट। रेडी हो तो फैंटास्टिक, नहीं हो तो फिर से एक बार प्रिपरेशन करो। ये सारी चीजें डिटेल में बात की जाएगी जब हम ऑफिशियली एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है, सिस्टम जो है, ये सारा एक्सप्लेन होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर इंटरव्यूज दैट यू माइट फेस। जो कुछ भी इवेल्यूशन होगा, जो कुछ भी एग्जाम होगा, इवेल्यूशन होगा, वो फेस करने के लिए वी विल हेल्प यू गेट प्रिपेयर्ड। फाइन। देन एक और चीज जो हम बार बार देख रहे हैं कि जब कंपनीज में स्टूडेंट्स जाते हैं तो कंपनीज का एक छोटा सा कंप्लेंट होता है कि स्टूडेंट्स, नॉट ओनली आर्स, सिर्फ हमारे ऐसे नहीं, ओवरऑल स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी थियरी तो पट पट बोल लेती है, बट इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी वजह से व्हाट वी डू इज कि हर एक मॉड्यूल के साथ हम एक या तो केस स्टडी इंप्लीमेंट करवाते हैं या तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट करवाते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी इट्स नॉट सिंपल A+B काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट भी करवाएंगे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जुड़ा होगा, रियल लाइफ सिनारियोस के साथ जुड़ा होगा, सो दैट रैंडम कुछ तो करवाया ऐसे ही नहीं होगा, राइट। तो वी विल असिस्ट यू इन क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम असिस्ट करेंगे। फाइन। हम आपका कोड नहीं लिखेंगे या हम आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे रेडीमेड। ओके, विल असिस्ट यू इन बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि यू शुड बी एबल टू बी रेडी। आप रेडी होने चाहिए इंडस्ट्री को फेस करने के लिए। तो उसके लिए जितना असिस्टेंस लगेगा सब हम प्रोवाइड करेंगे, एंड वी विल हैव यू क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट जो आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। फाइन। प्लस ऑनलाइन में तो लैब का कैसे करेंगे फिर? या सो वी ऑल्सो हैव लैब असिस्टेंट्स। ओके। तो जो थियरी होगी उसका लैब भी कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन होगा, बट वी विल कंडक्ट दैट। ओनली थिंग इज कि वो थोड़ा सा डायनेमिक होगा डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल, कि किसी मॉड्यूल को ज्यादा लैब लगता है, किसी मॉड्यूल को कम लगता है। तो बेस्ड ऑन ट्रेनर्स रिकमेंडेशन और आपकी रिक्वायरमेंट पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि करना क्या है। लैब करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, दैट विल बी डिफाइंड एट रन टाइम डायनेमिकली। फाइन। या ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोई भी इवैल्यूएशन या इंटरव्यू फेस करने में। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन इंटरव्यूज इन दी रियल लाइफ? इंटरव्यू दिए हैं आपने? कंपनी में कभी इंटरव्यू के लिए गए हो? एनीवन? You can just type yes or no in the chat window. Okay, you don't even have to take any efforts. Y or N is also fine. Shortcut use करते हैं हम लोग continuously. Y for yes, N for no. Right. So I'm sure that those of you जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, if you have any questions, I'm going to request you to hold for some time. हम बाद में कुछ टाइम स्पेसिफिकली रखेंगे जहां पे हम डिस्कशन करेंगे, राइट। आपके सवाल हम फील करेंगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन को रखो, कहीं पे लिख के रखो, चाहिए तो वी विल डिस्कस दैट। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहला टेस्ट होता है, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट टिपिकली मुश्किल लगता है, राइट। बहुत सारे लोग वहीं पे रिजेक्ट होके बाहर निकलते हैं प्रोसेस में।
नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आपने पास किया नहीं किया, बट ये सबको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, एंड जिसकी वजह से बहुत लोग प्रेशर में भी आ जाते हैं, राइट। प्लेसमेंट प्रोसेस में मैंने बहुत सारे लोगों को ये सवाल पूछते हुए देखा है कि इस कंपनी में मेरा कॉल लगा है लेकिन वहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये नहीं बताओ। एप्टीट्यूड होगा तो मेरा मुश्किल है, राइट। तो फॉर ओवरकमिंग दैट फियर, वो डर निकालने के लिए हम एप्टीट्यूड का भी आपको हेल्प करवाएंगे। वी विल हैव सेशंस ऑन एप्टीट्यूड, ओके। सेशंस होंगे जहां पे वी विल कनेक्ट विथ यू एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ये सवाल होंगे, क्वांटिटेटिव होगा, रीजनिंग होगा, टेक्निकल होगा, इंग्लिश होगा, लैंग्वेज होगा, सारे के सारे जो सवाल आते हैं एप्टीट्यूड में, उनको हैंडल कैसे करना है, हाउ टू रिजॉल्व देम, और कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसकी भी हम आपको टिप देते जाएंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी एडिशनली गिविंग। अगेन, इसका चार्ज होगा क्या? नो। वन थिंग दैट वी हैव ऑलवेज फॉलोड, कि एक बार आपने कोर्स फी भरा तो उसके बाद किसी भी चीज के लिए हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, अनलेस इट इज टू मेंटेन समथिंग। हाँ, मेंटेन समथिंग यानी बताएंगे बाद में, वी विल टॉक अबाउट दैट। इवन दैट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी बहुत पैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वी विल नॉट आस्क यू फॉर इवन अ सिंगल रुपी आफ्टर यू हैव पेड द फीस। फी भरने के बाद आपसे पैसे नहीं लेंगे। जो कुछ भी सर्विसेज हम ऑफर करेंगे, जो कुछ भी आपके साथ शेयर करेंगे, किसी भी चीज का आपको पैसे नहीं देना है, एंड फीस एज इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस। Okay, we'll talk about that in a minute, right? Again, this is, most of you already have resumes. Okay, I understand that. बट ऐसा होता है ना कि एचआर और रिक्रूटमेंट टीम्स को एक स्पेसिफिक टाइप का रिज्यूमे एक्सपेक्टेड होता है। तो वी विल ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड योर रिज्यूमेस, एंड ये 1-to-1 होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ 50 लोगों को बुला लिया और सबको बोला हाँ ये कर दो। हम आपसे शेयर करेंगे फॉर्मेट एक ग्रुप में, बट आफ्टर दैट आपके साथ 1-to-1 बात होके आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट, तुम्हारे रिज्यूमे में ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऐड करो, या तुम्हारे रिज्यूमे में ये कम पड़ रहा है, ये ऐड करो। वी विल हैव अ डिस्कशन विथ यू ऑन अ 1-to-1 बेसिस, है ना। वी विल हेल्प यू बिल्ड योर रिज्यूमे विच इज, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे इस प्रोसेस में काम करते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, जो कि मल्टीनेशनल्स की रिक्रूटमेंट टीम्स में पार्ट थे, जो कि एचआर पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर आपको रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगे, फाइन। And last but not least, and most one of the important points that we are going to share with you, you become a family member. Okay. अब इसका क्या मतलब है? हमारी ऑलरेडी फैमिली है, एक और फैमिली क्यों चाहिए, राइट। तो वो तुम्हारा पर्सनल फैमिली है, दैट्स द फैमिली दैट यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ, बट दिस इज योर प्रोफेशनल फैमिली। ओके। तो कोर्स खत्म होने के बाद वी हैव अ टैगलाइन। हम लोग एक टैगलाइन है जो हमने चुरा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये हमारा खुद का ओरिजिनल नहीं है, बट वी हैव मॉडिफाइड इट। एलआईसी का एक टैगलाइन है, पता है आपको? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक टैगलाइन है। एनीवन नोज दैट? पता है किसी को? अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो शायद पता होगा। तो हमने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी, राइट। तो आपका कोर्स खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस, हम लोग मेंटर्स हैं। ट्रेनर्स तो है ही, बट ट्रेनर्स के अलावा हम मेंटर्स भी हैं। मेंटर्स का मतलब कि आपका कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपसे डेफिनेटली बात करेंगे। जस्ट रीच आउट टू अस, बताओ प्रॉब्लम क्या है, वी विल ट्राई टू सॉल्व। टेक्निकल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, कुछ भी। ओके, बिकॉज हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग कनेक्शन में इंटरेस्टेड है। ट्रांजेक्शन यानी तुमने पैसे दिए, हमने कोर्स दिया, अब तुम घर जाओ, हम घर जाएंगे। दैट इज नॉट व्हाट वी डू। दैट इज नॉट व्हाट वी डू, फाइन। हम लोग अभी भी जो हमारे पहले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, वी टॉक टू देम। ऑफ कोर्स अब रोज के रोज तो बात होगी नहीं, है ना। बट अभी भी साल में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार मिलने आते हैं, बात होती है फोन पे, व्हाट्सएप पे तो कंटिन्यूसली बात होती है। सो वी आर कनेक्टेड विथ ऑल दी स्टूडेंट्स हु वांट टू टॉक टू अस, कभी भी, एनी टाइम, राइट। So you become part of that extended family members. We also have an alumni group.
तो वो अलमनाई ग्रुप में भी आपको ऐड करेंगे वंस यू गेट प्लेस्ड, एंड वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग होता है, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजों पे R&D किया जाता है. तो यू बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एज वेल once the course is finished and once you get a job, right? So these are some of the benefits that we suggest that we can help you with, right? Then how the course is going to be flowing, right? तो कोर्स तो आपने परस्यू करने का सोच लिया है, पहले 30 इयर्स आप फ्री भी देखोगे. मेरा सजेशन ये है कि वंस यू गेट कन्विंस, 30 इयर्स फ्री तो होंगे ही, बट वंस यू गेट कन्विंस, लेट्स से पहले 3 सेशन अमित के से अटेंड करने के बाद आपको लगा कि नहीं ये तो अच्छा है, हमें करना है, तो डोंट वेट टिल 30 days, टेक एडमिशन एज फास्ट एज पॉसिबल. Fine. So how does the course flow? I'm going to let Amit take over from here. So Amit, Yes, Chetni. right. Am I So audible? Amit would be explaining. You're audible. Yeah, okay. The flow is going to be like we will be starting with the web development, जो web technology के जो basics होते हैं, right from कि web मतलब क्या, या website या web applications ये क्या होते हैं. We all use web applications, websites all the time, लेकिन वो actually function कैसे करते हैं उसकी idea हमें नहीं होती है. So web development में अपना focus जो होता है, that is to understand the core concepts, like for example HTML है, CSS है, JavaScript है, उसके जो fundamentals है, okay, तो वो अच्छे तरीके से सीखना, because that is a very very important part of this journey, okay. जो core concepts हैं ये 3 HTML, CSS एंड JavaScript. Obviously उसमें additional चीजें भी है, जैसे bootstrap है, या फिर हम jQuery के बारे में बात करते हैं, but that is your web fundamental, that is how the course will start with. तो क्या होता है कि अराउंड अ मंथ और सो हम लोग पहले ये चीजें सीखते हैं, तो इससे बेस स्ट्रांग हो जाता है. नाउ इवन इफ यू थिंक कि सर हमें तो आता है HTML CSS, okay, believe me, when you actually start learning you will come to know that there are many things that you probably have not seen or not learned, okay. तो हम लोग उस डेप्थ में जाते हैं, उस डेप्थ में चीजों को सीखते हैं. Then once we are clear with these fundamentals, then the next model that we have is Angular, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले TypeScript लैंग्वेज सीखते हैं, which is based on JavaScript. तो वो काफी आसान है सीखने के लिए. And once we learn TypeScript, we move on with Angular. Okay? तो Angular जो है, which is a front-end framework, we learn the framework and then we start writing some small पहले तो हम लोग assignments पे काम करते हैं regularly along with your lab sessions. Then some case studies will be given and ultimately उसका एक project भी होता है, जहाँ पे सिर्फ आप फ्रंट एंडिंग पे काम करते हो. तो स्टार्ट विद क्यों, क्योंकि उसके आगे जो मॉड्यूल आता है विच इज Node.js, जहाँ पे हम लोग बैकएंड बनाना सीखते हैं. तो पहले हम लोग एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाते हैं. उस टाइम पे जब हम एंगुलर सीखते हैं, उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें बैकएंड डम रहता है. ओके, क्यों, क्योंकि हमने तब तक बैकएंड सीखा ही नहीं है. देन द थर्ड मॉड्यूल वी मूव ऑन टू नोड एंड एक्सप्रेस. तो जब हम नोड और एक्सप्रेस सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा बैकएंड कैसे बनाना है, वो भी हमें समझ में आता है. ओके, और जो हमने एंगुलर में प्रोजेक्ट किया था, जहां पे हम लोग फ्रंट एंड तो एंगुलर में करते हैं और वहां पे डमी बैकएंड यूज करते हैं, उस जगह पे नोड और एक्सप्रेस कंप्लीट होने के बाद हम बैकएंड अपना खुद का बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नोड एंड एक्सप्रेस. ओके, और वो एक बार बन गया तो फिर अपना जो मीन स्टैक वाला होता है, उसके बाद ऑब्वियसली वी विल गो फॉर अ MongoDB. तो डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो है वो स्टोर करना, रिट्रीव करना, वो सारी चीजें आएंगी वहां पे. सो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज we will be in a position to develop a full mean based application. Okay, इसके जो components है MEAN, Mongo, Express, Angular and Node, तो ये पूरा एक फुल स्टैक का एक एप्लीकेशन जो होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, वो अपना कंप्लीट हो जाता है इवेंचुअली. सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक an incremental application that will be working on. And as the last model, we learn the React, which is a library, which is a JavaScript based library, again a front end library. और हम लोग React के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, Redux सीखते हैं. एंड देन वंस वी लर्न React, देन हम लोग एक अलग एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे फ्रंट एंड जो है वो React के थ्रू यूज करेंगे. ऑब्वियसली बैक एंड स्टिल we'll be using with Node Express, and as a database we'll be using the MongoDB. So technically ये जो part है, this is how the flow is going to be. Right. Okay. Is there a question? Someone has raised a hand, I can see. Right. Amit, I am facing a technical difficulty in my end, तो मेरा connection drop हुआ है. I'm shifting to alternate connect. तो शायद अभी screen बंद हुआ होगा. I'm sharing the screen again.
Yeah, that is still fine. I mean, क्योंकि screen pad, yes, for reference, the slide was required, but I believe everyone here is at least a little bit aware कि हम लोग ये कोर्स के लिए आए तो ये मीन और मन होता क्या है. At least people know what is Angular, what is Node, yeah, what is React. Okay. So yes, screen या slide visible नहीं होगा, तो भी I hope you all of you got this information कि flow जो है कोर्स का वो कैसे होने वाला है. Right. So if you have any queries related with this flow, please go ahead and ask. Someone has raised a hand. I don't see the name, but I believe someone has. I think the presentation should be visible now. Yes, it is visible. ओके, तो जैसे मैंने फ्लो कहा, वेब डेवलपमेंट, उसके बाद एंगुलर, देन नोड एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, एंड उसके बाद रिएक्ट. एंड along with that, you'll be having the labs and the project assistance as well ongoing. With of course a set of assignments जो आपको करने पड़ेंगे, and of course जो भी issues वगैरह आते हैं, so the team will be there to help you out. Okay. Yeah, someone has raised a hand. मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे because मैंने मोबाइल से लॉगिन किया. So Urmila, yeah, Urmila, can you please go ahead and ask your question? Urmila, are you there? I think by mistake the hand वो might have गलती been से raised. ये आया या. हाँ. Yeah, okay. Yeah, Urmila, do you have a question? आपका कोई सवाल है? क्योंकि आपका हैंड रेज दिख रहा है, तो वी जस्ट वांट टू कंफर्म कि यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस और हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, गलती से मिस्टेक हो गया. राइट. तो अमित ने जो अभी एक्सप्लेन किया, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज स्ट्रेंथ बिल्डर्स. In addition to that, we are also giving you power boosters to help you be ready for the industry. और उसमें क्या क्या होगा? एप्टीट्यूड होगा, सॉफ्ट स्किल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे. सी बिकॉज ओएस इज अ बेसिक थिंग जो आपको पता होना चाहिए. शुड यू बी एक्सपर्ट इन ओएस? नो, बट पता होना चाहिए. सो विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट ओएस एज वेल कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम कैसे चलते हैं. तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे. इन एडिशन टू दैट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये ना, ये बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है. राइट. तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि सिविल इंजीनियर अगर किसी को बनना होगा तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े बिना बन सकता है? व्हाट डू यू थिंक? यस, नो? मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग पढ़े बिना बन सकता है? नो. तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन सकते हो? नो. कोडिंग लिखना इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. कोड कोई बना सकता है. राइटिंग द कोड इन द राइट वे, सही तरह से कोड लिखना इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो हम उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, उसमें क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है. सो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे, उनमें प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या फॉलो करना होता है. सो ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो बी शेयर्ड विथ यू. फाइन. एंड वन मोर थिंग दैट वी विल बी शेयरिंग विथ यू कि हम आपको गिट और गिटहब, सेंट्रल रिपोजिटरीज, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, इन चीजों के बारे में बताएंगे. वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस डेवऑप्स टू यू. Okay. तो ये ऑफ कोर्स ये डिटेल में ऑब्वियसली नहीं होगा, बट वी विल गेट यू रेडी टू फेस द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे. एंड वी विल गिव यू गाइडलाइंस इन टर्म्स ऑफ कि क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या हो सकता है. सो दैट अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि तुम्हें डेवऑप्स पता है नहीं पता है, तो तुम कंप्लीटली ब्लैंक ना हो जाओ. एटलीस्ट पता है, इतना तो बता सकते हो, है ना? नाउ, हैविंग सेड दैट, these are some of the add-ons that we are also going to be sharing with you. ठीक. सी और सी प्लस प्लस. ओके. नाउ यू विल से कि ये कोडिंग करना नहीं था इसलिए तो हमने मीन वन चूज किया है. आई एब्सोल्युटली एक्सेप्ट दैट, अप्रिशिएट दैट. राइट. है ऐसा कोई कि यार कोडिंग नहीं करना था इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में घुस रहे और इसलिए हम मीन वन कर रहे हैं? एनीवन? लेट्स बी ऑनेस्ट. ऐसा कोई है? कहीं ना कहीं दिमाग में ये आया है कि यार मीन वन में कोडिंग नहीं करना होगा, इतना कोडिंग नहीं करना होगा जितना सी सी प्लस प्लस में करना पड़ता है? लगा है किसी को? अगेन यू कैन यूज वाई एन वाई एन वाई एन.
एक और चीज जो आपसे मैं शेयर करूंगा जो आगे जाके भी यूजफुल होगा कि ओके, ओके, आई थिंक स्क्रीन का फिर भी एक इश्यू है. लेट मी सी अगेन. आई एम फेसिंग कनेक्टिविटी इश्यूज राइट नाउ. लेट्स चेक व्हाट कुड बी द ट्रबल. विल कंटिन्यू इन अ मिनट, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन में ना डिस्कशन करने पे ही समझ में आता है कि चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है. तो जितना हो सके उतना इंटरेक्शन करो, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रिक्वायरमेंट. तो जब तक ये रिक्वायरमेंट नहीं समझेगी तब तक हम क्लियरली डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स बी एज एक्सप्रेसिव एज वी कैन. एंड एज आई सेड कि हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यू नो सिर्फ शॉर्टकट में बात करो, यस नो यूज करो, स्माइलीज यूज करो. देयर आर लॉट स्माइलीज अवेलेबल, राइट? तो स्माइलीज यूज करो एंड लेट अस नो व्हाट यू आर थिंकिंग. आप क्या सोच रहे हो, ये अगर हमें पता चलेगा तो वी विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू इन अ बेटर वे. ठीक है, तो लेट मी check again. Give me one small 30 seconds window. I'll try to connect again क्योंकि connectivity का issue है. तो let me quickly. Am I audible now? Okay. As जनरली होता है, लॉग ऑफ करके लॉग इन करने पे सब ठीक हो जाता है, वैसे करना पड़ा तो आई हैड टू गो आउट एंड कम बैक अगेन. ओके, तो एज आई वाज सेइंग कि इन सारी चीजों के अलावा वी आल्सो ऑफर सी एंड सी प्लस प्लस. तो नॉट लाइव बट रिकॉर्डिंग्स. क्यों? बिकॉज इफ यू नोटिस, अगर आपने पहले कोडिंग किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सी इज एक्चुअली द बेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज. जितने भी लैंग्वेजेस डिफाइन किए गए उसमें बहुत सारी चीजें सी से इंस्पायर होके की गई है. जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीजें सी से इंस्पायर की गई है. तो इसलिए आपको सी का थोड़ा सा बेस पता होना जरूरी है. सेकंड थिंग इज दैट्स अ कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस वर्टिकल्स. यानी जावा हो, सी प्लस प्लस हो, या मीन हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सिंटैक्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वहां से आते हैं, राइट? तो वी गिव यू एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ कि सी सी प्लस प्लस में कोडिंग कैसे होता है, एंड दैट विल बी गिवन टू यू एज रिकॉर्डिंग. अगेन, ये रिकॉर्डिंग कब तक वैलिड होगा? या लाइफ टाइम तक, या जब तक गूगल चल रहा है तब तक. फाइन. Okay. Now, this is the duration that we generally offer in online sessions. That the strength builders यानी टेक्निकल जो हमने बात की थी, Mongo, Express, Node, Angular, React, ये सारी चीजों का जो डिस्कशन होगा वो ऑलमोस्ट 60 to 75%, 60 to 75 मिनट्स का सेशन रहेगा. 1 से 1.5 घंटे का सेशन हम रिकमेंड करते हैं, उससे ज्यादा नहीं. तो बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है. ऑनलाइन में कॉन्सेंट्रेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज. स्क्रीन के सामने बैठ के स्क्रीन के ऊपर देखो, कान में लगे हुए ईयरफोन से सुनो, इसमें 1 घंटे से ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर डिग्रीज ऑनलाइन? लॉकडाउन की वजह से कॉलेज नहीं जा पाए और डिग्रीज हमने ऑनलाइन किया था, ऐसे कितने लोग हैं? है कोई? राइट. तो सोनाली, यू माइट हैव रियलाइज कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती है इतनी जितनी डिटेल में चाहिए, उतनी डिटेल में, है ना? क्योंकि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है. इसीलिए हमने सेशंस भी वैसे ही डिफाइन किए हैं कि वी विल नॉट हैव सेशंस मोर देन 1 to 1.5 hours.
फाइन। सिमिलरली जो पावर बूस्टर्स आएंगे जैसे कि सॉफ्ट स्किल होगा या एप्टीट्यूड होगा, ओएस होगा, सॉफ्ट इंजीनियरिंग होगा, ये सारी चीजें भी 60 to 75 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज उससे ज्यादा अगर किया तो फिर उसका मतलब नहीं बनता है। जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए या जो हमने किया तो वो भी भूलना शुरू हो जाता है, तो 60 to 75 मिनट से ज्यादा नहीं रखेंगे। सिमिलरली जो लैब सेशंस होंगे वो भी 1 घंटे के लैब सेशंस होंगे, तो 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा लैब करेंगे, बट जनरली हम लोग लैब में ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो वी विल बी हैविंग मोर इम्प्लीमेंटेशन हैपनिंग, राइट? देन दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन, है ना? क्योंकि अगर ऑफलाइन कोर्स है तो आपको फिर उसी टाइम पे बाकी सारा शेड्यूल क्रिएट करना होता है। सुबह अगर 10 बजे का सेशन है तो 10 बजे पहुंचना पड़ता है फिजिकली ट्रेवल करके। 10 का 10:30 हो गया तो बहुत सारे ट्रेनर लेते नहीं अंदर, हम नहीं लेते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर 10 बजे का सेशन है और कोई 10:30 बजे पहुंचता है तो हम उसको अलाउ नहीं करते हैं अंदर। फाइन। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वंस यू टेक एडमिशन तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है, तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। आज शायद लाइव अटेंड नहीं कर पाए या 15 मिनट लेट हो गया, कनेक्ट इन और बाद में रिकॉर्डिंग के जरिए जो पार्ट मिस हो गया है उसको सुन लो, है ना? तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स दैट यू गेट इन एन ऑनलाइन सेशन। जो ड्रॉबैक है कंसंट्रेशन का, उसको कम करने के लिए हमने 60 मिनट का ही सेशन रखा है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। तो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट ओके आई एम इंटरेस्टेड इन परसुइंग द कोर्स, तो फिर पेड मेंबर कैसे बनेंगे? यानी कि जो बाकी की बेनिफिट्स हमने बात किया था, ओके, कि पूरा का पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा, ओके, या फिर बाद में अलमनाई में पार्ट ले सकते हो या कनेक्ट हो सकता है, तो ये सब कैसे होगा? फॉर दैट यू आर गोइंग टू हैव टू बिकम अ पेड मेंबर। पेड मेंबर कैसे बनेंगे? कोर्स फीस पे करके, right? How do we do that? So there are multiple options open, and for this, I'm going to invite one of my team members. Instead of Ranu had to go somewhere else, so she is not available. Sonal would be talking to us in terms of the financial part. Sonal, are you there? Yes, sir. I am there. Okay. So I'll hand over to you. Sonal will take you further in terms of what we are going to be doing here. हाँ, यहाँ पे बहुत सारे नो दिख रहे हैं, वो हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे, so don't worry. Sonal, over to you. Sir, I just need to share my screen. Can you allow me? Sure. What I'll do is I'll stop share from my end, and then you can share at your end. Sure, sir. Thank you. Okay, I'm done. So, Yes. Okay. Am I audible, everyone? And is my screen visible? Okay. So in the free group as well, you must have seen that the total fees for this course is 17,700, which is including GST. तो यहाँ पे हम लोग आपको 2 इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो यू कैन पे योर फीस इन इंस्टॉलमेंट, वेयर the first installment will be for 10,620 rupees, which is again including GST. And ये इंस्टॉलमेंट आप कब कर सकते हो? आज 10th मई से लेके 25th मई फ्राइडे तक आप ये इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, फर्स्ट 15 डेज में. सो इफ यू वांट, इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं हम लोग इंस्टॉलमेंट से फीस पेमेंट करेंगे, तो यू हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि 10,620 रुपीज का है, बिफोर 25 मई. 25th ऑफ मई के पहले आपको ये इंस्टॉलमेंट करना है. And once you do this installment, second installment, which is of 7,080 rupees, again, which is including GST, you can do this installment from 26th May to 9th June. तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 2 इंस्टॉलमेंट में अपने को फीस पे करना है, तो यू हैव 2 इंस्टॉलमेंट. वन is of 10,620 rupees
and the second installment is of 7,080 rupees. This is first option. Second option कि सोचो आपने मन बना लिया कि नहीं अमित सर के सेशन अच्छे लग रहे हैं आपको एंड यू आर थिंकिंग टू कंटिन्यू विद द सेशन एंड यू आर थिंकिंग टू पे इन वन इंस्टॉलमेंट, तो फिर आप एक इंस्टॉलमेंट अगर पे करना चाहते हो तो 17,700 कंप्लीट फीस आप आज से लेके 9th जून तक कभी भी पे कर सकते हो. So 9th June is the last date for the full installment. अगर आपने पहला इंस्टॉलमेंट जो कि 10,000 और 620 रुपीज का है वो अगर आप नहीं करते हो 25 मई तक, तो बाय डिफॉल्ट आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा 9th जून तक. Am I clear with this? So you have two options. Decide which option you will like to go, and you can make the fees payment. As Chetan sir has already mentioned, once you pay the fees, which will not be refunded. एक बार फीस पे कर दी तो रिफंड नहीं होगी, बैच चेंज भी नहीं करने आएगा. आपने अगर 10th मई के लिए एडमिशन लिया है तो यू विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम बैच. आपको ये डिटेल्स along with the number where you need to pay the things, everything will be shared in the group after the session. So ये detailing आपको वापस group में भी मिलेगा, or you have again the recording as well. You can go through it, and if you have any questions, you can ask in the group. That is okay, everyone? ओके. चेतन सर, आई थिंक वो जो हम लोग बेनिफिट्स एंड पर्क्स की बात कर रहे थे, आई विल लाइक यू टू एक्सप्लेन इट अगेन. The power boosters and बाकी सारी चीजें. No sir, the refund wala funda and Okay, no I'll batch go back change to that. wala. I'll go back to that. Okay. Let me share my screen, Yes, and I yes. will take over from there. Okay. Thank you, sir. Thank you, Sonal. Okay, so as we said, that is the course fee structure. और जैसे कि हमने डिस्कशन जब किया था तब शुरू किया था क्या कि लोग इस 50-60 हजार रुपए लेते हैं, लाख रुपए लेते हैं, तो comparatively we do have a competitive price point. Do you agree with that? The pricing, yes, it is competitive. ये अफोर्डेबल है, इसमें ज्यादा जेब में हेवी नहीं होगा. We agree with that? लगता है. एंड ऑफ कोर्स हम आपको ये भी बता रहे हैं कि देन कंपेयर इट विथ व्हाटएवर वी आर ऑफरिंग. ठीक है. नाउ व्हाई वी आर सेइंग नो डिस्काउंट, बिकॉज ऑलरेडी इतना कम है, और इसमें और डिस्काउंट कितना लोगे? फाइन. इफ द फी इटसेल्फ हैड बीन, लेट्स से, जनरली ये मार्केट में होता है, पहले प्राइस रखो 50 रुपए, फिर डिस्काउंट देके बोलो 40 रुपए में देंगे, और कॉस्ट ऑलरेडी हो गया 25 का. राइट. तो हम उसमें नहीं बिलीव करते हैं कि पहले प्राइस बढ़ा के बोलो फिर डिस्काउंट दो. We don't do that. We are honest about what we are offering. We are honest about कि जो हम दे रहे हैं वो अच्छा है, इसका ये प्राइस है, इसमें हम कम नहीं करेंगे. फाइन. डिस्काउंट कौन देता है? जिसको माल बेचना है वो देता है. ओके. एक टैगलाइन जो हमेशा यूज करते हैं हम लोग स्टूडेंट के साथ बात करते वक्त, वी आर नॉट सेलिंग, वी आर सॉल्विंग. ओके. हम आपको कुछ बेच नहीं रहे हैं, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो डिस्काउंट पॉलिसी है ही नहीं हमारे पास. राइट. तो अगर कोई बोलता है कि मैं एक साथ 10 स्टूडेंट लाता हूं तो मुझे 5% 10% डिस्काउंट मिलेगा क्या? सो वी वेलकम ऑल द मेंबर्स हु वांट टू ज्वाइन, बट डिस्काउंट नहीं होगा, बिकॉज वी ऑफर क्वालिटी. हम क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, तो क्वालिटी का एक प्राइस होता है, और हम ऑनेस्ट भी हैं कि हम प्राइस बढ़ा के फिर कम कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे, तुझे 10 तक के डिस्काउंट दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे, है ही नहीं डिस्काउंट. राइट. सिमिलरली वी आर नॉट गिविंग एनी रिफंड. क्यों? बिकॉज हम आपको 30 दिन दे रहे हैं ना, तो आप 30 दिन देखो, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, बुरा है, आपको
मैच कर पाएगा, यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट, तब उसके बाद ही आपको ये डिसीजन लेना है। फाइन, तो नो, देयर विल नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिफंड। सिमिलरली रिप्लेसमेंट नहीं होगा कि मैंने पैसे भरे अब किसी और को बैठने दो। राइट, वन ऑन वन रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो अगर तुम्हारा नाम भी अगर चेंज होता है तो उसके बाद वो रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल होता है। ओके, तो वी विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स बैच शिफ्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपने अभी इस बैच में एडमिशन लिया है तो इसी बैच में आप कंप्लीट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्डिंग है ना, राइट, तो शिफ्ट क्यों करना है, रिकॉर्डिंग में पार्ट ले लो। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा या प्रॉब्लम है या मुझे तो ऑफलाइन ही करना था, तो ऑफिस पे आके हमसे बात करो, राइट, बट बैच शिफ्टिंग नहीं करेंगे। है ना? आर वी ओके विद दिस? हम जो नो बोल रहे हैं वो क्लियर है क्यों नो बोल रहे हैं? वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी नेगेटिविटी इनटू इट। हम लोग सिर्फ इतना बता रहे हैं कि पूरा सोच समझ के आपने डिसीजन अगर लिया है तो फिर चेंज क्यों करना, डिस्काउंट क्यों मांगना, राइट, निगोशिएट क्यों करना ना। सब्जी मंडी तो है नहीं, 10 रुपए की सब्जी 8 रुपए में दे दो, राइट। नॉलेज है तो नॉलेज का एक प्राइस होता है, वो प्राइस एक डिफाइन किया गया है, एंड एज आई सेड कि प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है, तो फिर डिस्काउंट का कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है। आर वी इन सिंक? क्लियर है हम जो बात कर रहे हैं वो क्लियर है? लेट्स टेक अ कंफर्मेशन, आर वी क्लियर विथ व्हाट वी आर सेइंग, राइट? गुड। नाउ इफ आई से कौन कौन लोग हैं यहाँ पर, राइट, तो मीट योर मेंटर्स। हु आर these mentors? This is the person who just talked to you. Okay, Sonal Jaju. She is I would say all-rounder, but वो भी कम पड़ेगा क्योंकि हम जो कुछ भी ऑफर करते हैं, जितने भी ऑफरिंग हम देते हैं, सारी की सारी सोनल इज एक्सपर्ट इन दैट। जावा से लेके पाइथन से लेके टेस्टिंग से लेके मीन मन तक सब कुछ सोनल कैन डू, राइट, एंड शी इज कैरिंग ऑलमोस्ट 15 years experience with her, right? So yes, she's one of the best technical experts that I've ever come across, and I have been in industry for a long time. Fine. So Sonal will be interacting with you from time to time. Sonal will be part of your mentor group. तो अगर आपको कोई दिक्कत है, टेक्निकल होगी, प्रोफेशनल होगी, तो आप हम लोगों में से किसी से भी बात कर सकते हो। सोनल इज वन ऑफ दैट। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्सन। सुना है? हैज एनीवन heard about this person? Okay, this is Vinayak Uzrambe, and he is the CEO of the organization. Fine, but more importantly, he is a mentor. ओके, एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है। वी आर ट्रेनर्स, वी आर ट्रेनर्स एट कोर, एट हार्ट, ऑल ऑफ अस आर ट्रेनर्स, जो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, राइट। तो इवन दो ही इज अ सीईओ, ही इज अ मेंटर, so if you have any trouble you can always go to him and talk to him, right? In addition to that, this is going to be your uh, experts who are going to be discussing with you. So Node, Express, Mongo, React के लिए we have Amit और Sonali. These are the names that we are suggesting. Okay, ऐसा नहीं होगा कि यही नाम आएंगे यही लोग करेंगे। We will connect you with experts क्योंकि शेड्यूलिंग पे डिपेंड करेगा। If Amit is busy with some other batches or some other schedule, तो उस वक्त सोनाली ले सकती है, सोनाली की नहीं होगी तो कोई और ले सकता है। So there are multiple people who are going to be connected with us. ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंडेंसी आएगी तो प्रॉब्लम आएगा कि अगर लेट्स से अमित नोड ले रहे हैं और अमित नहीं आए तो क्या होगा? अमित को यूएस जाना पड़ा तो क्या होगा? Don't worry, we have alternates available. Fine. So we will have multiple people connected with you. Lab sessions will be conducted by Toshi and Parikshit. Fine. Soft skills, we have dedicated trainers जो आपके soft skill के session लेंगे. Pooja Kothari and Isra Davre. So these are two individuals who will be connecting with you on soft skill sessions. Aptitude, we have Vaibhav. Okay. For operating systems, we have Chinmay or Pragati.
then we have software engineering, Amit and Sonal. Now let me give you an idea कि जो डेप्थ की हम बात करें, यहाँ पे हमने 2 नाम सिर्फ दिए हैं, लेकिन हर एक टॉपिक के ऊपर इन दोनों के अलावा पीछे बैकग्राउंड में हमारे पास 2 और ट्रेनर होते हैं जो रन टाइम पे सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं. These are the primary options which are giving you. Right? In addition to this, और भी ट्रेनर्स हैं, और भी लोग हैं जो ये कंडक्ट कर सकते हैं. फाइन. सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अरे ये ट्रेनर कहाँ से आ गया, ये कौन है. जो कोई भी आपसे कनेक्ट करेगा, दे विल बी चेक्ड, टेस्टेड, वेरीफाइड, एंड बाद में उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, डेप्थ के बेस पे आपसे वो कनेक्ट करेंगे. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट सिस्टम. तो व्हाट इज क्रेडिट सिस्टम? क्रेडिट सिस्टम आपको इवेल्युएट करने का एक जरिया है. एज आई सेड, इवेल्युएशन आपका परसेंटेज में नहीं होगा कि 30%, 40%, 50%, इस पे चेक नहीं करेंगे. व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल ट्राई टू इवेल्युएट यू इन द सेंस कि आप इंटरव्यू फेस करने के लिए रेडी हो या नहीं हो. फाइन. तो कैसे करेंगे? जैसे कि हमने बोला था कि हम क्रेडिट पॉइंट्स ऑफर करते हैं कि अगर आपने मॉक दिया, लेट्स से एज पार्ट ऑफ योर कोर्स एग्जीक्यूशन, वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल खत्म हो गया, तो वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपके मॉक्स अरेंज किए जाएंगे. हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली इंटरेक्शन होगा, एंड वी विल हैव डिस्कशन विथ द ट्रेनर एंड द स्टूडेंट, या तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड द स्टूडेंट, एंड उनके फीडबैक पे कि ये कैंडिडेट को अच्छा आता है, नहीं आता है, इंटरव्यू फेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, देयर विल बी अ क्रेडिट पॉइंट गिवन. तो क्रेडिट पॉइंट कितना होगा? या तो 0 या तो 1. राइट? जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये बाइनरी है, इसमें शेड नहीं है, ग्रे शेड ऐसा कुछ नहीं है. या तो 0 होगा या तो 1 होगा. ओके. ऐसे ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर कोर्स, पूरे कोर्स में आपको अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग क्रेडिट पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, और ऐड होने के बाद बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर, वी आर गोइंग टू बी putting you in the placement activities. ओके. क्यों? राइट. अब ये क्रेडिट पॉइंट है, लेकिन क्यों है? रीजन इज कि ऐसा बहुत बार होता है कि पीपल गो इन इंटरव्यूज वेरी कैजुअली. क्या हो गया कोर्स, मुझे आता है, अब मुझे इंटरव्यू फेस करना है. बट इंटरव्यू में जाने के बाद पता चलता है, एंड दिस इज, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है. ओके. हम बहुत सारे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं. वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट. तो हमने एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 73 कॉल्स दिए थे. How many? Yeah, just to confirm कि you have heard me correctly, can you type the number in the chat window? Can you confirm what you heard? How many calls? Yes. Right? But ये, while it's a good number, right? From a student perspective, it's a good number. But problem कहाँ है कि इतने क्यों कॉल लगने चाहिए? We want you to get placed in 3rd or 4th or 5th. Right? Then we started talking to people, and then people started saying कि नहीं, फिर इंटरव्यू में जाने के बाद डर लगता है, नर्वसनेस आता है, फिर वहां पे जाके हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं. ओके. तो बोल ही नहीं पाते हैं क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है. एंड टू मेक दैट हैबिट, वो आदत क्रिएट करने के लिए वी आर हैविंग दी क्रेडिट सिस्टम, ताकि आप क्रेडिट सिस्टम जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मॉक देते रहो. कितने मॉक दे सकते हैं? इन्यूमरेबल. एक मॉक क्लियर नहीं हुआ, फिर से एक बार दे दो, फिर से एक बार दे दो, क्योंकि मॉक में फेल होना इज गुड, इंटरव्यू में फेल होने से अच्छा है. डू यू एग्री? इंटरव्यू में जाके फेल होंगे उससे अच्छा है कि मॉक में 2-3 बार हो जाओ, तो आदत हो जाएगी, फेल होने की नहीं, आंसर देने की आदत हो जाएगी, सो दैट इंटरव्यू में यू विल बी रेडी टू फेस द इंटरव्यू. राइट? दैट इज द व्हाई ऑफ द क्रेडिट पॉइंट्स. फाइन. एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट? तो देयर इज अ सिस्टम फॉर दैट. एक पूरा सिस्टम प्रोसेस बना हुआ है. वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे वंस यू बिकम पार्ट ऑफ द पेड मेंबरशिप. तो एक्सप्लेन करेंगे, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हर एक मॉड्यूल के बाद आपका एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को आपको प्रेजेंट करना होगा, और मॉक इवैल्यूएशन होगा, तो वो मॉक क्लियर करना होगा. ओके. एंड बेस्ड ऑन दैट नंबर, अगर आपने मॉक क्लियर किया, प्रोजेक्ट क्लियर किया, तो आपको एक एक क्रेडिट पॉइंट मिलते जाएंगे, और क्यूम्युलेटिवली वी विल डिसाइड कि आप रेडी हो या नहीं हो. एज आई सेड, ये पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वंस यू बिकम पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन. तो विल एक्सप्लेन दैट, बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी रनिंग द क्रेडिट सिस्टम. ठीक है. तो
What is it? It's a standard evaluation system. Summary कर लेते हैं. तो what is credit system? It's a standard evaluation system जो सबके लिए common होगा. आप मीन में हो या जावा में हो या पाइथन में, उससे फर्क नहीं पड़ता है. सबको इस evaluation के थ्रू ही जाना पड़ता है. And that is how you will be eligible for the placements. Fine. क्यों कर रहे हैं? Because जितनी बार हम इटरेट करते जाएंगे उतना आप निखरते जाओगे. राइट. एंड अल्टीमेटली जो एंड में वर्जन आपका निकलेगा, दैट विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. क्योंकि जो पहले गलतियां की थी वो हम अवॉइड करना सीख जाएंगे. इंटरव्यू में जाके सीखने से बेहतर है यहीं पे सीख जाएंगे. राइट. एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस, एज वी सेड, थ्रू असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस एंड मॉक इंटरव्यूज. क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस आइडिया? प्लीज अंडरस्टैंड कि क्रेडिट पॉइंट सिस्टम इज मैंडेटरी. उसके बिना हम किसी को प्लेसमेंट में जाना ही नहीं देते हैं, क्योंकि कंपनीज में जाके फेल होने से अच्छा है आप मॉक में जितनी बार होना है बोलो, एंड देन यू कैन क्लियर दैट. फाइन. नाउ, as I said, your course placement eligibility will be dependent on this, or course completion certificate will also be shared after credit points का जो criteria होगा वो clear करने के बाद. Alright. Now, placement, these are the numbers. कि 2021 में टोटल कंपनीज जो हमारे साथ जुड़ी थी वो थी 115. 2022 में 247. दिस वाज दी लॉकडाउन के बाद जो एकदम हायरिंग शुरू हो गया था, रैंडम हायरिंग शुरू हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज थी. 2023 the whole industry faced a slowdown. So you have 123, and currently if you take a look at the analysis in the year 2024, things have picked up a little bit. Fine. So over the last 3 to 4 years we have connected with 562 different companies. अब नो क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि जिसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा, ना तो एजुकेशन का, ना तो गैप का, ना तो बैकग्राउंड का, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा. तो लॉकडाउन के बाद तुरंत जो हायरिंग का मास हुआ था वहां पे ऐसी बहुत सारी कंपनी थी, बट अब स्लो डाउन के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है. बट स्टिल वी आर कनेक्टिंग विद कंपनीज, स्टिल वी आर शेयरिंग प्रोफाइल्स विद द कंपनीज, उनके साथ कनेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस्ड थ्रू दैट. बट मास हायरिंग इज स्टॉप्ड. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट कि बहुत सारी कंपनीज ने बोला है कि हम मास हायरिंग नहीं करेंगे. जो पहले होता था कि कॉलेज में गए और एक साथ 60 बच्चे उठा के ले गए, तो ऐसे नहीं हो रहा है. तो यस, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर पीपल हु वर्क हार्ड. ओके. तो जो लोग हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है उनके लिए अभी भी सारे दरवाजे ओपन है. पीपल हु जस्ट वांट टू वॉक थ्रू लाइफ कि नहीं ठीक है, चलता है, चलने दो, हो जाएगा, दे माइट स्ट्रगल लिटिल बिट इन द करंट सिनेरियो. तो जरूरी क्या है? यू हैव टू बी एब्सोल्युटली हार्ड वर्किंग. उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. फाइन. नाउ हैविंग सेड दैट, वी आर ओपनिंग द फोरम फॉर योर क्वेश्चंस. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है प्रोसेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में, you can ask us. Go ahead. Your opportunity starts now. You can also just check. Can you unmute and talk to us? Because I do understand कि chat window में type करना थोड़ा सा time consuming है. कौन type करते बैठेगा, इसलिए भी हम सवाल नहीं पूछते हैं. तो can someone just unmute yourself and see if you are able to speak to us? Anyone? Just say hello. We are okay with that. अरे इतने शर्मीले हो क्या? Okay, but let's have any questions if you have. Do you have any questions? कोई डाउट है या हमने जो बताया उसमें कुछ समझ में नहीं आया या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो लेट अस नो. कोई भी सवाल अगर कोर्स के बारे में पूछना चाहते हो तो द फोरम इज ओपन. प्लीज गो अहेड एंड टॉक टू अस. टेक्निकल क्वेरी होगी तो अमित है. फीस के बारे में क्वेरी है तो सोनल कैन आंसर, आई कैन आंसर. नो क्वेरीज, नो क्वेश्चंस.
Okay. There is good opportunity for non-IT background. गौरव, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ. Can you explain that a little bit? आप कह रहे हो या बता रहे हो? I mean, what exactly are you saying in that case? Are you asking the question or you are saying asking? Okay. Right. Gaurav, let me be honest with you. Okay. And sugarcoat करके हम कुछ भी नहीं बताते. Okay. We do not sugarcoat anything. यानी झूठ मूठ का हम आपको कोई वादा नहीं करते. But let me be honest with you. कि अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है तो द नंबर ऑफ कॉल्स दैट यू गेट माइट बी ऑन द लोअर साइड. ओके, हम ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हो जाएगा सब बढ़िया सब अच्छा है सब बेस्ट है. यू विल नॉट से दैट. आई डू एक्सेप्ट, आई डू अग्री, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. बाकी लोग बताते नहीं है. वी आर बीइंग ओपन अबाउट दिस कि अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है तो आपको नंबर ऑफ कॉल्स शायद कम आएंगे. अगर आईटी बैकग्राउंड वाले लोगों को साल भर में 100 कॉल आ रहे हैं तो आपके 30 कॉल्स तक जा सकते हैं, 30-35 तक जा सकता है नॉन आईटी के लिए. ओके, बट दैट इज व्हाई वी से कि अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है, आपको आईटी में शिफ्ट करना है तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. राइट. आईटी वाले अगर दिन में 4 घंटे पढ़ाई करें तो आपको 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटी है. May not be as much as IT background people, but yes, there will be companies who will be coming in कि जिनका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का क्राइटेरिया नहीं होता है. Right? So will there be opportunity for non-IT background? Yes, there will be, but you will have to work harder than normal people. Right? यानी IT वालों से ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा. Are we clear, Gaurav? Okay. Then BCA 2024. राज, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो BCA, BCS, BSc इन डिग्रीज के ऊपर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. जैसे कि अभी मैंने गौरव के क्वेश्चन को बोला कि वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज कम आती है. ओके, तो विल यू गेट एन अपॉर्चुनिटी? पॉसिबली यस, बट विल इट बी एज मच एज BE वालों के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? थोड़ा सा मुश्किल होता है. ओके, होता क्या है ना कि हम प्रोफाइल शेयर करते हैं कंपनीज के साथ और कंपनीज वहीं पे बोल देते हैं कि ये BSc या BCS वाले नहीं चाहिए. ओके, हमें वेलकम टू इन अ सेकंड. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप MCA कर सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी फैंटास्टिक. यू कैन डू इट साइड बाय साइड. जो हम कोर्स कर रहे हैं उसके साथ भी आप कर सकते हो. तो यू नो दोनों हो जाएगा. है ना? मकरंद, ओके, let's take this in a different light. कि 4-5 महीने में मीन मन हो सकता है क्या? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एंड आई विल इनवाइट अमित टू आंसर दैट एज वेल. बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 महीने में मीन मन हो सकता है क्या? हो सकता है. अगर आप दिन में 6 घंटे काम करना शुरू करो तो डेफिनेटली हो सकता है. दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. फाइन. आर यू विलिंग टू पुट दैट टाइम रिलीजियसली, सीरियसली हार्ड वर्क कर सकते हो तो मीन मन 1 महीने में भी हो सकता है. ऑफकोर्स हम 1 महीने में नहीं कर रहे हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि ये आपके ऊपर है कि 4-5 महीने में हो सकता है नहीं हो सकता है. अमित, योर थॉट्स ऑन दिस? या सो क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि 4-5 महीने में. पहली बात तो हम लोग अपने यहाँ पे जो करेंगे दैट विल बी फॉर 6 months, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी 4 or 5 months. और दूसरी बात ये है कि 6 months इज इनफ ड्यूरेशन जहाँ पे लोग जो नॉन आईटी से है वो 6 महीने में इतनी सारी चीजें सीख के आईटी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इट इज अ डिसेंट ड्यूरेशन फॉर एनीवन who has the ability or who basically has कि मैं सिंसियरली ये चीज करूंगा, मैं उतना एफर्ट्स उसमें डालूंगा. ओके, इफ यू फील कि मैं सिर्फ सेशन अटेंड करूंगा और मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. सेशन इज जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू दैट टू टीच यू दैट पार्ट, टू टीच यू दैट टेक्नोलॉजी. लेकिन उसके बाद आपको खुद को उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है. बिकॉज देखो, थेरोटिकल चीजों से कुछ नहीं होता है. आईटी में जो चलता है दैट इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज. आप कोड कर पाते हो या नहीं. So as Chetan said, if you are ready to invest your 5-6 hours daily, then definitely 6 months is the enough duration जहाँ पे आराम से जीरो से पर्सन उसमें हीरो बन सकता है. डेफिनेटली बन सकता है. राइट. और एक और चीज मैं अमित के आंसर को जोड़ूंगा कि द कोर्स ऑफरिंग दैट वी हैव ये मिनिमम 6 months का है. हम मिनिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6 महीने में हो सकता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन
finishing it. Okay, I'm going to use different words और थोड़ा सा उसका डिफरेंस समझो कि हम कोर्स फिनिश नहीं करते हैं, हम कोर्स कंप्लीट करते हैं. Do you understand the difference? फिनिश करना यानी 6 महीने हो गए, चलो फिनिश कर दो, कोर्स सिलेबस डिक्लेयर होता है ना कॉलेज में कि टॉपिक खत्म नहीं हुआ लेकिन हमने डिक्लेयर कर दिया कि सिलेबस हो गया. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कि 6 महीने बोला है तो 6 महीने में जितना हुआ उतना हो गया, अब तुम तुम्हारा देख लो. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग कि 6 महीने का कोर्स है, तुझे मेन के लिए 1 ही महीना मिलेगा, उसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, तुझे नहीं आया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं आया. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर फोकसिंग ऑन दैट यू शुड लर्न. तो लर्न करने के लिए वी विल कंप्लीट द सिलेबस, वी विल नॉट फिनिश इट. राइट. कंप्लीट का मतलब जब तक आपको एक बेसिक स्किल सेट नहीं मिलता है, जब तक आपको एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करने की स्किल्स नहीं आती है, तब तक हम ये करेंगे. तो 6 महीने का 7 महीने हो सकता है क्या? हो सकता है. अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट अमित हैज बीन मेंशनिंग एंड आई हैव बीन सेकेंडिंग दैट कि अगर आप मेहनत करना शुरू करो, इफ यू आर पुटिंग 6 आवर्स डेली, तो डेफिनेटली 6 महीने में खत्म हो सकता है, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड. Absolutely nothing will stop you from going ahead and being successful in this way. Clear है? Is that clear, Makram? Makram, is your question answered? Okay. Now, similarly, we have a question from Urmila. Pass out year का placement या package पे impact होता है क्या? Urmila, I'll come back with that again कि gap अगर आपका है तो placement पे impact होगा थोड़ा सा. As I said, number of calls शायद कम होंगे. Fine. Package पे impact होगा क्या? तो why are you worried about package? Urmila, are you working right now? आप अभी काम कहीं पे काम कर रहे हो या is this going to be your first job? पहला जॉब है या ऑलरेडी काम कर रहे हो कहीं पे? उर्मिला, नॉट वर्किंग. तो इफ यू आर नॉट वर्किंग, पैकेज से क्या फर्क पड़ता है? राइट. इट्स सी बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में एक बार अंदर घुसना इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग कि फ्री में काम करो, या प्लेसमेंट में जो कंपनी हमारे पास आएंगी वो या 2000 पेमेंट करने वाली, 4000 पेमेंट करने वाली कंपनीज नहीं होंगी. एक भी अभी तक जो 500 हमने नंबर बताया था उसमें से एक भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के नीचे नहीं है. वी टेक केयर ऑफ दैट. अगर कोई कहता है कि हम 5000 सैलरी देंगे तो हम नहीं लाते उस कंपनी को यहाँ पे. ओके, सो बी अश्योर्ड अबाउट दैट. बट पैकेज, डोंट बी ऑब्सेस्ड बाय द पैकेज कि मुझे पैकेज इतना चाहिए, मुझे पैकेज इतना उतना होगा तो ही मैं काम करूंगा, काम करूंगी. लेट्स नॉट वरी अबाउट द पैकेज राइट नाउ. हम लोग पहला जॉब ढूंढ रहे हैं. ओके, और जब पहला जॉब ढूंढ रहे हैं तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि जो जॉब मिल रहा है वो देखो, लो, बी सीरियस अबाउट इट. आपका ड्रीम हो सकता है कि मुझे मेटा में काम करना है, होना भी चाहिए, राइट. बट डू यू थिंक कि मेटा में पहला जॉब मिल सकता है? नहीं ना. सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. तो कहीं ना कहीं शुरू करो. मे बी वहां पे आपको 15,000, 18,000, 20,000 सैलरी मिल रही है, तो वहां पे 1 साल भर रहो, एक्सपीरियंस लो, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम अगला जॉब ढूंढ सकते हो जो फिर आपकी मन मर्जी का हो सकता है. बिकॉज एक बार तुम इंडस्ट्री में घुस गए तो उसके बाद कोई आपको पूछता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, डिग्री क्या है. नोबडी केयर्स अबाउट दैट. पहली बार आपसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा गैप कितना है, तुम आईटी से हो या नहीं हो. ओके, 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपके रिज्यूमे में तो कोई पूछता नहीं है कि तुमने बीई किया है या तुम 12वीं पास हो. नोबडी केयर्स. ओके, सो डोंट वरी अबाउट द पैकेज और एनीथिंग. हाँ, प्लेसमेंट नंबर ऑफ कॉल्स पे इम्पैक्ट हो सकता है क्या? तो यस, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू कि अगर गैप है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. गैप लंबा है तो ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 1-2 साल का गैप है तो या बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा. You will be getting calls in percentage of 70 to 80% of the latest batch. फाइन. 3-4 साल का गैप है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है. क्लियर है? So perfectly fine, because as I said that gaining knowledge is never going to waste. And in addition to that, अगर आपको almost 2.5 साल का experience है तो that will definitely be a plus point for you when you start seeking jobs later on. हॅलो. Yes. सर मी विद्या बोलतेय. हाँ.
मी 2019 पास आउट आहे. ओके. आणि म्हणजे त्यानंतर माझा गॅप झाला 1-2 वर्ष आणि 2022 ला लागले, पण माझ्याकडं 10 महिन्याचाच एक्सपिरियन्स आहे. आणि आणि आता एक्सपिरियन्स कशाचा आहे? ॲज अ जावा ट्रेनी म्हणून लागले होते. हा, हरकत नाही ना. मग 10 महिन्याचा एक्सपिरियन्स तुम्ही दाखवू शकता. ओके. मग आता Right. खूप गॅप झाला ना परत. आता मध्ये परत 1 वर्ष गेलं. मग सो व्हॉट यू प्लेसमेंट कॅन डू इज प्लेसमेंटला थोडासा त्याचा इम्पॅक्ट होईल, पण जर का तुमचा 10 महिन्याचा एक्सपिरियन्स रेझ्युमे मध्ये असेल तर त्यांनी थोडंसं प्लस पॉईंट होऊ शकतं. ओके. ठीक आहे. विल इट इम्पॅक्ट द नंबर ऑफ कॉल्स? येस, इट विल. राईट. बट विल इट इम्पॅक्ट की जर का तुम्ही 2019 नंतर काहीच केलं नसतं, त्याच्या मानाने तेवढा इम्पॅक्ट नाही होणार. ओके. म्हणजे मग कॉल भेटू शकतात. म्हणजे हो, पण आय बी ऑनेस्ट अगेन की गॅप असल्यामुळे अगदी 100% कॉल जे बाकीच्यांना मिळत आहेत किंवा जे करंट पास आउट आयटी वाले आहेत तेवढे कॉल नाही मिळणार, पण कॉल डेफिनेटली मिळतील. ओके. तरी पण म्हणजे त्यांच्या मान्याने किती मिळतील? आय वुड से अराउंड 60 to 70% पर्यंत मिळू शकतील तुम्हाला. म्हणजे जर का 2024 पास आउट आयटी वाल्याला जर का वर्षातून 200 कॉल मिळत असतील, एवढे कॉल कोणी घेत नाही, पण जर का तेवढे कंपनीज येत असतील तर तुमच्यासाठी साधारणतः एक 125 ते 150 कंपनीज ओपन असू शकतात. ओके. ठीक आहे. Okay, Hamid, you had raised a hand. Let me take your question first. I'm pronouncing your name correctly, right, Hamid? Okay, let me go with the next question. Front end, back end में problem आ रहा है. Raj, we will be talking about both in this case. तो और जैसे कि अमित ने भी बोला था थोड़ी देर पहले कि हमें लगता है कि हमें आता है जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो अगर आपको आता है तो फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट. तो वो कोर्स में आप कंफर्म कर लो कि आपको आता है. बट मेरा अंदाजा ऐसा है कि शायद कोर्स करते करते जिस डेप्थ पे हमारे ट्रेनर्स पढ़ाते हैं आपको शायद ये समझना शुरू हो जाएगा कि हाँ, आपको जो आता है वो बेसिक आता है, पक्का आता है, बट हमें और डीप में जाने की जरूरत है. राइट. तो इफ यू आर क्लियर विद फ्रंट एंड, गुड, बट जस्ट कंफर्म दैट यू आर क्लियर विद द फ्रंट एंड. बैक एंड ऑब्वियसली नोट जेएस एंड ऑल द स्टफ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा. राइट. Right. I think we talked with Urmila. All right. Any other questions? Any other queries that you have? We are more than happy to answer that. You know, I'm also expecting a question by someone कि मैं फीस कब भरूं और कभी भरूं. वो भी सब पूछ लो. Okay. Almost 3 years experience in Pega, but I want to change technology systems for me to run assessment. Learn, definitely yes, because all of us are technocrats. Placement, it depends on you, right? So let me be clear about that. कि प्लेसमेंट के लिए हम आपको कंपनी से कनेक्ट करेंगे. प्लेसमेंट में प्लेसमेंट होगा नहीं होगा ये अल्टीमेटली आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आप एफर्ट ले रहे हो, अगर आप एफर्ट देने के लिए रेडी हो, तो आई डोंट सी कि प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा. हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नोबडी, दुनिया का कोई भी इंसान प्लेसमेंट का गारंटी नहीं दे सकता है. जो देता है वो झूठ बोल रहा है. ओके. एनीवन हु सेज कि आपको 100% जॉब गारंटी देते हैं हम, वो झूठ बोल रहा है. नोबडी कैन गिव यू गारंटी. हाँ, अनलेस वो किसी गलत तरीके से आपको जॉब कहीं पे दिलवा सकता है, जिसको मराठी में हम बोलते हैं चिपकाना, चिकटवणं कुठतरी. वो अगर कोई कर रहा है तो हम उनसे compete कर ही नहीं रहे. ओके, बिकॉज वी हैव कोर वैल्यूज. तो उसकी उस कोर वैल्यूज में वो बैठता नहीं है किसी को कहीं पे चिपकाना. अगर आपके पास स्किल है तो यू विल डेफिनेटली गेट प्लेसमेंट. देयर इज नो वन और नथिंग कैन स्टॉप यू. बट डू आई गारंटी कि सुजाता को जॉब मिल जाएगा? आई कैन नॉट. नोबडी कैन. what I can guarantee that we will 100% connect you with the industry. फिर वहां पे आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपका स्किल सेट कितना है, आप कितना अच्छे से वो डिस्कशन करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इज इट गुड फॉर लर्निंग? एब्सोल्युटली. आंख मूंद के मैं बता सकता हूँ. राइट.
इफ आई हैव एनी रिलेटिव या कोई मुझे आके पूछता है कि फर्स्ट वीक में तुम अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करोगे क्या, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि बाकी सब छोड़ दो, फर्स्ट वीक का कोर्स ज्वाइन करो। राइट। तो लर्निंग के बारे में तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हमारा ट्रेनिंग जो होगा वो अच्छा ही होगा। प्लेसमेंट ये दिस इज गोइंग टू बी, आप कितना मेहनत करते हो, हाँ मेहनत करने के लिए हेल्प सब हम प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, हेल्प, मेंटरिंग, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी क्लियर? बट अगेन हमारा ये मानना है कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत नहीं होती है। दैट इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग, पिछले 3-4 सालों से हम वही देख रहे हैं कि जो लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं सीरियसली, जो लोग असाइनमेंट्स करते हैं सीरियसली, उनको जॉब मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। राइट। तो इट्स गोइंग टू बी हाउ द कैंडिडेट परफॉर्म्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑलराइट, एनी अदर क्वेरीज, क्वेश्चंस, और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? बस यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेरीज, डाउट्स। अगर अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में कुछ क्वेश्चन याद आ गया, तो आप जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हो वहां पे सवाल पूछ सकते हो। somebody will connect with it। अगर इफ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सब कुछ कर लो। एंड ओके, ये मैं मार्केटिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ओके, दिस इज नॉट फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट द मोर यू लर्न, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। ओके, अगर आप मन कर रहे हो अभी, तो यू विल बी कनेक्टेड विद कंपनीज हु आर वर्किंग इन मन। बट अगर आपको मन और जावा दोनों आता है, तो यू विल बी कनेक्टेड विद कंपनीज विच विल बी ऑफरिंग यू अ जॉब, जो जावा में भी हो सकता है, मन में भी हो सकता है। राइट। तो ये हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल डेप्थ है वो भी बढ़ाते जाओ, कि मैं जावा में तो बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फिर मुझे पाइथन कुछ नहीं आता है, या मुझे मीन मन के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आपका चॉइसेस नैरो हो जाएगा। बेटर वर्स कुछ डायरेक्टली नहीं होता है, हर एक का प्लस और माइनस पॉइंट होता है, बट फ्रॉम जैसे मैं समझ रहा हूँ, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो या सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, एनी विच वे दोनों केस में भी टेक्नोलॉजी सही गलत नहीं होता है। राइट। हम उसको कितना अच्छा यूज करेंगे, कितना अच्छा उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो एंड दैट इज व्हाई वी रिकमेंड कि तुम फ्री सेशंस जो है वो सारे के सारे अटेंड करो, जावा के भी करो, मन के भी करो, दोनों में जाके देखो आपको कौन सा ज्यादा सूट होता है, उसके हिसाब से यू कैन कनेक्ट एंड उसके हिसाब से आप एडमिशन कर सकते हो, है ना। तो जावा के भी फ्री सेशन अटेंड करो। ऐसा नहीं है कि हम खाली एक ही ऑप्शन दे रहे हैं आपको। राइट। मीन मन के भी आप फ्री सेशन अटेंड कर सकते हो, जावा के भी फ्री सेशन अटेंड कर सकते हो, तो दोनों कर लो एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। राइट। Alright, fantastic. So if you have any further questions, you can always put them on the group. हम वहाँ पे भी आपसे बात करेंगे, तो no worries. But good luck and welcome to First Week. कल से आपके टेक्निकल डिस्कशन शुरू हो सकते हैं, तो वहाँ पे be present there and let's have a great journey going ahead. Okay. For now, I'm closing the discussion. If you have any further questions, please connect with us on the group. Right. Thank you very much for your patience, and hopefully I'll talk to you again at some point of time in future. Right. So bye bye. Have fun. Have a great weekend and stay safe. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, Chetan. Bye, Hello. everyone. Yes. So we can stop the presentation. We can stop the
right? So if you have any queries, talk to us. All right. So Raj, Gaurav, and Vidya, if you do not have any queries, we can drop off. Yes, sir. Okay. All right.